The Pahari School of Miniature Painting. Origin and Development. The Pahari School of Miniature Painting originated in hill estates of Basoli, situated on the bank of river Ravi, about 1690 AD. Later, Gular, Chamba, Mandi, Kangra, Garhwal, and Kullu became its main centers. Besides this, Jammu, Srinagar, Nurpur, Menkot, Nalagarh, and the plains of Punjab became its sub-centers. Besides stylistic vividness, the Himalayan environment, round faces, half moon shaped forehead, normal sized deep eyes, and normal statured men women replete this world of miniature paintings and provide them Pahari specialties. The art of Pahari school has the following sub-schools of miniature paintings. The Pahari School of Miniature Painting. Origin and Development. 1690 एडी में मिनिएचर पेंटिंग की पहाड़ी स्कूल की उत्पत्ति बसोली के हिल स्टेट में हुई, जो कि रिवर रावी के किनारे बसा हुआ है। तत्पश्चात गूलर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल और कुल्लू इसके मेन सेंटर्स बने। इसके पास में ही जम्मू, श्रीनगर, नूरपुर, मेनकोट, नालागढ़, जिसे हिंदूर के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब के मैदान इसके सब सेंटर्स बनाए गए। शैलीगत जीवंतता के बगल में हिमालयन इन्वायरमेंट, राउंड फेसेस, हाफ मून शेप्ड फोरहेड, नॉर्मल साइज्ड डीप आइज एंड नॉर्मल स्टेचर्ड मेन वीमेन से भरपूर मिनिएचर पेंटिंग्स की यह दुनिया पहाड़ी स्पेशलिटीज़ को प्रदान करती है। पहाड़ी स्कूल के आर्ट की मिनिएचर पेंटिंग्स विभिन्न सब स्कूल्स के साथ है। बसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. This style came into existence when Mughal Emperor Aurangzeb had restricted all the forms of art in his court. In the middle of 17th century, the court painters artists moved towards the hilly states. They implemented technical coordination of various elements of Mughal style into the art forms previously existed there. The new form of art that came into existence was called sub-school of Basoli miniature painting. Although these artists were subservient to their patrons, yet they were fully independent in selecting the subject matter. In their new paintings, they included only the specific element of Mughal style. Topics of the paintings. The painters started making paintings on abstract themes of the literary volumes such as Ras Manjari, Ramayana, Geet Govind and Ragmala. Characteristics. The paintings of this style are almost square in shape. Double-storied or high-towered buildings have been shown in the background of these paintings. Hilly environment, river waterfall, clouds, lotus and other flowers have been used as ornamental elements in the painting. बसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. यह स्टाइल तब अस्तित्व में आया जब मुगल एम्परर औरंगजेब ने अपने कोर्ट में आर्ट के सभी फॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया था। 17th सेंचुरी के मध्य में कोर्ट पेंटर्स हिल स्टेट्स की ओर मूव कर रहे थे। इन्होंने ही सबसे पहले मुगल आर्ट स्टाइल के वेरियस एलिमेंट्स को टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा आर्ट फॉर्म्स में प्रस्तुत या क्रियान्वित किया। आर्ट का न्यू फॉर्म्स जो अस्तित्व में आया, जिसे सब स्कूल्स ऑफ बसोली मिनिएचर पेंटिंग कहा गया, उस समय यह आर्टिस्ट अपने संरक्षकों के अधीन काम किया करते थे, जबकि अपने सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट थे। इनकी न्यू पेंटिंग्स में मुगल स्टाइल के केवल स्पेसिफिक एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। टॉपिक्स ऑफ द पेंटिंग. पेंटिंग्स के साहित्यिक विषयों के एब्स्ट्रैक्ट थीम जैसे कि रास मंजरी, रामायण, गीत गोविंद एंड रागमाला जैसे विषय
पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत की। कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टाइल की ऑलमोस्ट पेंटिंग स्क्वायर शेप में है। इन पेंटिंग्स के बैकग्राउंड में डबल स्टोरीड हाई टॉवर्ड बिल्डिंग्स दिखाई देती है। हिल इन्वायरमेंट, रिवर, वाटरफॉल, क्लाउड्स, लोटस, फ्लावर्स इस पेंटिंग में ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। Gular sub-school of miniature painting. Gular is famous for both the types of paintings, individual and subjective. It wonderfully inaugurated the mysteriousness and the beauty of women. The emotion disposition of Gular's painting is not seen even in the painting of the Mughal style. Gular sub-school of miniature paintings. गुलर पेंटिंग्स दोनों टाइप्स के लिए फेमस है, इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव। इसमें विमेन की ब्यूटी और उसकी मिस्टीरियसनेस का वंडरफुल उद्घाटन किया गया है। गुलर की पेंटिंग्स में केवल इमोशनल डिस्पोजिशन ही नहीं दिखाई देता, बल्कि मुगल स्टाइल की इन पेंटिंग्स में और भी बहुत कुछ दिखाई देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुलर स्टाइल: extraordinary tenderness in colors, extraordinary execution of work, wonderful thinness in the underlining emotion, delineation and perspective provide the excellence to the Gular paintings. Fonts, cottony clouds and emotive nature are characteristics of Gular paintings. यदि हम गोलर सब स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंडरनेस जो कि कलर्स में थी, वर्क ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन था। इसमें जो रेखांकन किया जाता था वो वंडरफुली थीननेस और इमोशनल डेलिनेशन गोलर की पेंटिंग को एक्सीलेंस प्रदान करती है। हल्के पीले रंग के कॉटनी क्लाउड्स और इमोटिव नेचर गोलर पेंटिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कांगड़ा सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. Miniature painting of Kangra are glory of Pahari painting. In these paintings, we can feel smell of soil of that place. Tenderly engraved features of women are pleasing. Kangra style was on apex of its excellence in the reign of King Sansar Chand. The pomp and show of the king's court has been shown with the medium of thin lines and colors. The human portraits painted here are natural and beautiful. कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग पहाड़ी पेंटिंग की शोभा है। इन पेंटिंग्स में किसी विशिष्ट स्थान की मिट्टी की खुशबू को महसूस किया जा सकता है। इसमें विमेन के फीचर्स को कोमलता सहित आकर्षक रूप में उकेरे गए हैं। किंग संसार चंद के राज्य में कांगड़ा स्टाइल उत्कृष्टता में शीर्ष पर थी। किंग के महल के वैभव को थीन लाइंस और कलर्स के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स को नेचुरल और ब्यूटीफुल तरह से पेंट किया गया है। टॉपिक्स ऑफ कांगड़ा पेंटिंग. Keshav Das poetry, Rasik Priya, has been the lovely topic of Kangra painting style. Radha Krishna have sometimes been painted as a lover beloved and the other side as an actor-actress. The painters of this style have painted the love story of Sashi Puno, Heer Ranjha and सोहानी माहीवाल एंड अदर्स. यदि कांगड़ा स्कूल के टॉपिक्स को देखें तो इसमें केशव दास की पोइट्री रसिक प्रिया कांगड़ा स्टाइल के पेंटर्स का लवली और फेवरेट टॉपिक था. इन पेंटर्स द्वारा समय समय पर राधा कृष्णा एज अ लवर पेंट किए गए, तो ये कभी एज एन एक्टर एक्ट्रेस पेंट किए गए. इन स्टाइल के पेंटर सोहानी महिवाल
और आदर्स की लव स्टोरीज पेंट की। Characteristics: red, yellow, and blue basic colors are placid and decorative. Delineation of beautiful margins, ornaments, and buildings are praiseworthy. Balanced shaped trees and the panoramic natural scenes, magnificent, teeming with the leaves, towers, shrubs, and hill provide specialty for कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग। कांगड़ा स्कूल की चारित्रिक विशेषताओं में रेड, येलो और ब्लू जैसे बेसिक कलर्स प्लेसिड और डेकोरेटिव है। ब्यूटीफुल मार्जिन्स का चित्रण, ऑर्नामेंटल और बिल्डिंग्स प्रशंसनीय है। बैलेंस्ड शेप ऑफ ट्रीज, पैनोरामिक नेचुरल सीन्स, लीव्स, फ्लावर्स, शब्स और हील्स के वैभव से परिपूर्ण पेंटिंग कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग्स को स्पेशलिटी प्रदान करती है। चंबा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इनऑर्डिनेट, bewitching, tender and unusual figures of women give distinct identity to the miniature painting of Chamba. The painters of this style have prominently showed red and blue colors with the coordination of artistry and technique. विमेन की असामान्य मनमोहक सौम्य छवि चंबा की मिनिएचर पेंटिंग्स को अलग ही विशिष्टता प्रदान करती है। इस स्टाइल्स को पेंटर ने कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्टिस्ट्री और टेक्निक द्वारा प्रमुखता से रेड और ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करके बनाया है। गढ़वाल सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल style looks like Gular style. In the painting of painted here shows the charmness of colors, clarity in expression and tenderness of beauty. Systematic painting and to developed symbolic design its specialty of Hindur Nalagar art. गढ़वाल स्टाइल गुलर स्टाइल के जैसी दिखाई देती है। इन पेंटिंग्स में चार्मनेस ऑफ कलर्स, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन और द टेंडरनेस ऑफ ब्यूटी दिखाई देती है। सिमेट्रिक पेंटिंग्स और टू डेवलप्ड सिंबॉलिक डिज़ाइन हिंदू नालागर आर्ट की स्पेशलिटी है। मंडी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, द पेंटिंग्स ऑफ मंडी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेंटिंग्स पेंटेड इन पहाड़ी सब स्कूल्स. Due to its stylistic and subjective speciality, the painting of various tantric forms of a goddess in the specialty of Mandi miniature paintings. In these paintings, the painters have emphasized inordinate use of dark black, red, and blue colors to improve the dreadfulness of the mysterious form of the goddess. मंडी पेंटिंग्स अपने स्टाइलिस्टिक और सब्जेक्टिव स्पेशलिटी के कारण अदर पेंटिंग्स से डिफरेंट हैं, जो कि पहाड़ी सब स्कूल्स में पेंट की गई है। गॉडेस की वेरियस टेंट्रिक फॉर्म्स की पेंटिंग्स मंडी मिनिएचर पेंटिंग की स्पेशलिटी है। इन पेंटिंग्स में पेंटर्स ने असामान्य रूप से डार्क ब्लैक, रेड एंड ब्लू कलर्स का यूज़ गॉडेस के मिस्टीरियस फॉर्म की भयंकरता को दर्शाने के लिए किया है।